السلام علیکم، PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے صدر سپریم کورٹ بار راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وکلاء کے ہمراہ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر کیک کاٹا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن راجہ محمد سجاد خان ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء ہمارے معاشرے کی طاقت ہیں، بددیانتی اور کرپشن کو جڑ سے ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، نظام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار اور دیگر بارز پر مشتمل ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائیں گے جس میں تمام بارز کی نمائندگی ہوگی۔ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق وکلاء کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کے صحت کی سہولیات سمیت دیگر تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وکلاء کا حق ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کریں، کسی بھی بددیانتی کو سامنے لائیں، اس سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ عوام پر خرچ کریں گے۔ عوام کو صحت کی سہولیات اور تعلیم پر زیادہ فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں ادویات کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا ہے تاکہ ادویات کی بروقت فراہمی ممکن ہو سکے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے ملاقات کے دوران مو سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور بھی موجود تھے، جبکہ وکلاء کے وفد میں نائب صدر سپریم کورٹ بار سردار جاوید اعظم ایڈوکیٹ، جنرل سیکریٹری حلیم اعظم ایڈوکیٹ، جوائنٹ سیکریٹری جمشید احمد ایڈوکیٹ، سردار ظریف اسلم ایڈوکیٹ، نظر حسین نظر ایڈوکیٹ اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر وفد نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں گڈ گورننس، میرٹ، قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی کے لیے وکلاء حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون اور حمایت کریں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے کہا ہے کہ پاپولیشن کا بجٹ بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اقوام متحدہ میں کشمیری عوام کی بھرپور ترجمانی کی۔ وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے کوٹلی میں محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاپولیشن بجٹ کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت علماء کرام کے کردار سے فوائد سمیٹنا چاہتی ہے۔ آبادی اور وسائل میں توازن حقیقی ترقی کے ضامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آبادی کو بروقت کنٹرول نہیں کیا گیا تو وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی نہیں بنایا جا سکے گا۔ تعمیر و ترقی کے ساتھ ہمیں بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لانا ہوں گے۔ وزیر صحت نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انڈین سپریم کورٹ فیصلے کی مذمت کرتا ہوں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے اقوام متحدہ میں بھی مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اٹھایا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف اپنانے پر کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے اور تحریک آزادی کشمیر کو نیا ولولہ ملا ہے۔ برطانیہ کے شہر اسٹوک آن ٹرینٹ کے لارڈ میئر ماجد خان کا جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت کے چیئرمین راجہ نجابت حسین کی دعوت پر آزاد کشمیر کا دورہ، میرپور میں والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر لارڈ میئر ماجد خان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور انہیں ہار پہنایا گیا۔ لارڈ میئر ماجد خان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب سے لارڈ میئر ماجد خان، اسپیشل ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف، چیئرمین جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی لارڈ میئر اسٹوک آف ٹرینٹ حاجی ماجد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کی سیاست میں شرکت روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے اور پہچان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز کشمیری ملک کے زر مبادلہ میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز کشمیریوں نے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر عالم اسلام کی خاموشی قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے اوورسیز کشمیری بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیشل ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور فلسطین پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بند کروانے میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق رٹھوا ہریام برج کے زیر التوا منصوبے کی تکمیل کے لیے وار فٹنگ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس قومی منصوبے میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ جلد اس منصوبے کی تکمیل سے خطے کے عوام کو فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس موقع پر میزبان تقریب جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے کہا کہ لارڈ میئر حاجی ماجد خان اس خطے کا عظیم سپوت اور ہمارا اعزاز ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کی سیاست میں اہم کردار ادا کر کے ریاست جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی سیاسی و سماجی اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے دی جانے والی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حکومت کا ایک اور اہم کارنامہ آزاد کشمیر میں ای ٹینڈرنگ اور ای بڈنگ کا باقاعدہ آغاز میرپور سے کر دیا گیا۔
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के विजन के मुताबिक ज़िला मीरपुर के चारों हल्का इंतखाब की सड़कों के 2 अरब रुपए मनसूबाजात की ई बिडिंग का प्रोसेस एक्सीएन शहरात के दफ्तर में मुकम्मल कर लिया गया। ई टेंडरिंग और ई बिडिंग हुकूमत आज़ाद कश्मीर का बड़ा कारनामा है, जिसकी वजह से पूल सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो गया है। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में पहली बार ई बिडिंग का आगाज किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग काउंसिल पाकिस्तान की रजिस्टर्ड फर्मों ने घर बैठकर बजरिया ई मेल प्रोसेस में हिस्सा लिया। ई बिडिंग में जुमला तरक्याती कामों की अलग अलग ई टेंडरिंग रखी गई थी, जिसमें इंजीनियर्स और फर्मों ने बराह रास्त हिस्सा लिया है। ई बिडिंग से शफाफियत के साथ साथ बचत की पॉलिसी को भी फरोग मिला है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मीरपुर के लिए शहरात के मंसूबों में ई बिडिंग से 25 करोड़ रुपए बचत हुई है। इस मौके पर बात करते हुए चीफ इंजीनियर शहरात अब्दुल बासित ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक, वज़राए हुकूमत चौधरी अज़हर सादिक, चौधरी यासिर सुल्तान का ई टेंडरिंग में कलीदी किरदार है। ई बिडिंग से शफाफियत के साथ साथ हुकूमत की बचत की पॉलिसी को भी फरोग मिला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का तरक्याती कामों के लिए शफाफियत और बचत की पॉलिसी को फरोग देना खुशआइंद पहलू है। हिंदुस्तानी फौज की हिरासत में 3 कश्मीरी शहरियों के वेशियाना कत्ल के खिलाफ मुजफ्फराबाद में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीरी नौजवानों के दौरान हिरासत कत्ल पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और स्याह झंडे लहराकर एहतजाज किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए पासबान हुर्रियत के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने कहा है कि भारतीय अफवाज गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान हजारों कश्मीरियों को अगवा करने के बाद टॉर्चर सेलों और फौजी कैंपों में हिरासत के दौरान शहीद कर चुकी है। मकबूजा कश्मीर में दरियाफ्तशुदा होने वाली हजारों गुमनाम कब्रों में दौरान हिरासत शहीद होने वाले कश्मीरियों को दफन किया गया है। उन्होंने कहा कि सानेहाए सरनकोट जम्मू और कश्मीर भारतीय जंगी जराइम की ताज़ा मिसाल है। उज़ैर अहमद गजाली ने कहा कि मोदी हुकूमत ने भारतीय फौजियों को निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि वो सरनकोट में कश्मीरी शहरियों के कत्ल का नोटिस लें और इसमें मुलव्विस भारतीय फौजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, PIDAG की डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स और सकाफत मलक शौकत हयात ने कहा है कि तासुबात से पाक पाकिस्तान से ही हकीकी फलाही रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी का जामिन है। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स मलिक शौकत हयात ने पाक कश्मीर आर्टिस्ट सोसाइटी, गवर्नमेंट फातिमा जिना पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज मुजफ्फराबाद और महकमा स्पोर्ट्स सकाफत व अमूर नौजवानान हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम कायद आज़म के सिलसिले में कायद आज़म फेस्टिवल की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई नस्ल को अकाबिरीन मिल्लत के अफकार, नजरियात और जिद्दोजहद से आगाह करने की जरूरत है। कश्मीरी आवाम ने श्रीनगर में गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर की और पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हमारी सरहदों और असमतों की मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर जद्दोजहद करते हुए ये वतन हासिल किया। मुल्क दुश्मन अनासिर इस मुल्क के खिलाफ सफ़े आरा हैं। हमें मुत्तहिद होकर वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करना है। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ने कहा कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए अकाबिरीन की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में जानों का नजराना पेश करने वालों को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। तकरीब में मारूफ सिंगर्स राजा इमरान, अब्दुल बासित, नोमान सलीम, तानिया कश्मीरी, नबीला खान ने खूबसूरत परफॉर्मेंस देते हुए मिली और कौमी नगमों से समा बांध दिया। जबकि यौम कायद आज़म के हवाले से मुनक्किदा इस तकरीब में तुलबा और तालिबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज ने जिला मीरपुर में वेब के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज ने जिला मीरपुर में वेब के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त पर दफा 144 के तहत पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी की रूह से कोई भी शख्स, अशखास, जनरल स्टोर्स मालिकान वेब की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते और न ही इसका इस्तेमाल कानूनी तस्वर किया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में फरोख्त कुनूनदगान मालिकान के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे कि वेब के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं और इसके साथ साथ नौजवानों में सिगरेट नोशी का रुझान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेब के आदी अफराद में तबई मसाइल के साथ साथ दीगर ज़हनी और समाजी मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तामीर कश्मीर प्रोग्राम के तहत सनौती के दोनों इलाकाजात प्लंदरी और ब्लोच के लिए शहरात की तामीर, पुख्तगी और बेहतरी के लिए ई टेंडरिंग के तहत ठेकाजात अलॉट कर दिए गए हैं।
तामीर कश्मीर प्रोग्राम के तहत सदनोती के दोनों हल्का जात पलंदरी और बलोच में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट और वज़ीर बराए सियाहत व आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने अवामी फलाह बहबूद और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए शाहरात की तामीर बेहतरी और पुख्तगी के लिए मंजूरी दी थी, जिसके लिए ठेकेजात का प्रोसेस ई टेंडरिंग के जरिए अमल में लाया गया है। इस हवाले से मोहतरम तामीरात आमा शाहरात डिवीजन नदीम सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ई टेंडरिंग एक साफ शफाफ प्रोसेस है। हुकूमत का ये अमल काबिल सताइश है। इस अमल से ठेकेजात में गैर जानिबदारी और शफाफियत को फौकियत मिली है। उन्होंने कहा कि पलंदरी और बलोच में साफ शफाफ अलॉटमेंट्स के अमल के बाद मनसूबाजात को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करवाया जाएगा ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सकें। डिप्टी कमिश्नर नीलम राजा आरिफ महमूद की ज़ेर सदारत पोलियो एरेडिकेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला नीलम में आमदा इंसदादे पोलियो मुहिम बारे इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नीलम राजा आरिफ महमूद की ज़ेर सदारत पोलियो एरेडिकेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में PDSP चेयरमैन बल्दिया सैयद तजम्मुल हुसैन शाह, MDS झंबर कैप्टन मोहम्मद तनवीर तारिक, ऑफिसर इतलात मोहम्मद हनीफ, असिस्टेंट डायरेक्टर EPI सैयद मुबशर गिलानी, डिप्टी DO मर्दाना गुलाम सरवर, DSO WHO डॉक्टर नूरुलैन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में जिला नीलम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इजलास में 8 जनवरी से 12 जनवरी आमदा पोलियो मुहिम के इकदामात का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर चेयरमैन पोलियो एरेडिकेशन कमेटी डिप्टी कमिश्नर राजा आरिफ महमूद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नीलम के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए अवाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि 5 रोजा पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम अलाई डिपार्टमेंट महकमा सेहत के साथ भरपूर ताउन करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जफर इकबाल ने इब्तदाई इंतजामात के हवाले से इजलास को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला नीलम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। जिला नीलम में कामयाब पोलियो मुहिम के लिए 220 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगे। इस मौके पर PDSP ने 5 रोजा मुहिम के दौरान इजलास को सिक्योरिटी के बारे में मौसर इंतजामात की यकीन दहानी भी करवाई। डिप्टी कमिश्नर हवेली कहूटा इमरान शाहीन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुर्शीदाबाद ने काला मोला मेन रोड की नाकस तामीर के खिलाफ अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए रोड पर जारी काम बंद करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर हवेली कहोटा राजा इमरान शाहीन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुर्शीदाबाद ने काला मूला मेन रोड की नाकिस तामीर के खिलाफ अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए जारी काम बंद करवा दिया। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर पहुंचे और जारी काम का मुआयना भी किया। मुआयने के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर खुर्शीदाबाद ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर दूर अफ्तादा इलाकों में अवामी सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठा रही है। नाकिस काम काबिल कबूल नहीं, गैर मेयारी और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का काम है कि वो हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी को हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि वो अवामी मुफादात के मंसूबा जात में किसी किस्म की कोताही बरते। PID-AJ के डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान।